dress and goes out, obviously the boys would get distracted, right? That was a joke. But this video is not about this kind of jokes. It's about a serious issue that Bollywood is silently doing and is being normalized in the society in the name of feminism. And if you also feel the same, please share it with others and make sure to spread the word. Whether we like it or not, cinema plays a significant role in our lives. We are highly being influenced by cinema. We as a society evolved in so many ways because of cinema. Cinema has normalized a lot of things which were once considered a taboo, but the same cinema is now normalizing things which shouldn't be normalized in any society. Lipstick Under My Bagga is one of the popular Bollywood feminist film which talks about the life of four women. In that movie, there's an old woman who pretends to be a young girl on the phone and honey traps a young man. They do all kind of things like sex chatting and all, but when they met in real, the guy got disgusted seeing an old woman and shouted at her for cheating him. It was all fine until they portrayed that old woman as the victim of this incident. There's nothing wrong in being sexually active at an old age, even with a young man. But what about consent? How can we justify honey trapping? Let's imagine reversing the gender. A 60-year-old man pretends to be a young man and honey traps a 25-year-old woman. When she comes to know about it, she gets mad and feels really disgusted about it. Now who's the victim here? The young woman or the old man? Obviously the young woman, right? Because she was the one who got cheated. Then how come this 60-year-old woman becomes a victim in this movie and lectures about sexual freedom? In the same movie, there's another character where a woman in her engagement function leaving her fiancé on the stage has intercourse with her lover, and once that is over, without any sort of guilt or regret, she goes and stands with her fiancé. And by the way, that was not a forced marriage. She was willingly getting engaged to that guy. You can ask Slapping him is what was the word you said? Is abuse of a man. When a man is eve teasing a woman and she's walking by and he's like, "Woohoo, kya lag rahi hai? Kaisi chal rahi hai?" A woman shouldn't go, "Chal be." Psh. You're saying that's wrong. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children, how you're managing it all. Don't question me. If I ask you a kiss or 1 crore rupees, which one you will give me? Wait, who, you, or you're gonna give me 1 crore? That's a very silly question. That was your one chance, guy. To ask me anything, and that's what you asked. Girls like it when they are young and they scream. I think that's ridiculous. I think that's very disrespectful to say to a girl. I think if there is sex or a kiss or a hug, there are 2 people there, and not just the girl. Bodily exploitation जैसी सिर्फ एक चीज होती है, वो है rape. Understand? person that controls का मेरा होगा. I'm an artist. If I'm required to do a certain job, I will do it. If you get out of your cocoon and look at the world cinema and look at what people are doing abroad and what people are successfully doing and are not ashamed of their own bodies, you will probably not ask me this question. Meant to say was nothing is a very small petty thing for somebody like you. And I mean, not for you to react. I think the camera. Can you pan this camera on this lady here, Can please? you just pan the camera on her right now? It's a small petty thing. You have You're a absolutely no girl. idea what you're saying right now. And I am already very upset, and you're making me even more upset. Okay, And you're being a woman and you're saying Yeah, this. that's very. You have been very lucky. In fact, like in the film, Shah Rukh is very eager to kiss you actually. You know? How much did you enjoy that? Because normally on screen, Shah Rukh doesn't kiss his heroines actually. Sir, I think I need a minute to appreciate this question. किसने बोला मैं lucky हूँ? वो lucky है. Oh, many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? देखोगे तो आपको मिलेगा a belief that women should have the same rights and opportunities as men, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए. लेकिन ये तो है गूगल वाली डेफिनेशन. आज के टाइम में बॉलीवुड वाली डेफिनेशन फेमिनिज्म की अलग है. चीटिंग, गोल्ड डिगिंग, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल और टेकिंग ड्रग्स, और अभी लेटेस्ट वाली डेफिनेशन तो है स्टार्टिंग योर ओनली फैन अकाउंट. यस, दिस इज हाउ
Bollywood is portraying feminism. I thought I should just break the gates of my school. I went and got my hair after seeing Kuch Kuch Hota Hai. Films can only change your, the way you dress, the way you do your hairstyle. They can't change your your moral values. Our country, cinema has the power to influence. तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए, अगर तुम्हें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना है तो उसमें उसकी मदर को ही गलत दिखाया गया है और सिद्धि निकल जाती है एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो शुरू कर देती है अपना एक ओनली फैन अकाउंट जहाँ पर लोग उसे बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन देते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट। ये सारी चीज़ें सुन करके सिद्धि को लगता है मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है वेट कम करने की, और फिर सिद्धि बन जाती है कि स्टैंड अप कॉमेडियन। इसी सीरीज में आगे चल करके जब यही सिद्धि एक लड़के के साथ में सेक्सुअली इंगेज होती है तो यही सिद्धि उस लड़के की बॉडी शेमिंग करती है और उसको बहुत ही नॉर्मलाइज माना जाता है। अंजना जो कि इस सीरीज की एक बहुत ही लीड कैरेक्टर हैं और उन्हें एक सिंगल मदर दिखाया गया है और वो एक रिलेशनशिप में आती है अपने जूनियर के साथ में, और वो जूनियर जब इनके साथ में रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाता है तो ये उसको डिच कर देती हैं और बाद में इनको ही विक्टिम दिखाया जाता है कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। नाउ चेंज द जेंडर, अगर कोई सिंगल फादर है और कोई अपनी जूनियर किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आ जाए और बाद में उस लड़की को छोड़ दे जब वो लड़की रिलेशनशिप में सीरियस हो जाए, तो विक्टिम कौन हो? वो लड़की ना। बट ये सीरीज में दिखाया जा रहा है कि आप जिसे छोड़ रहे हो वो विक्टिम नहीं है, आप खुद ही विक्टिम हो। क्यों? क्योंकि ये तो लेडी है। तो अंजना जी को विक्टिम दिखाया जा रहा है। एक और कैरेक्टर है इसी सीरीज के अंदर, दामिनी, जो कि बहुत ही बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट वुमेन है और वो एक बहुत सीधे साधे बंदे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, वो बंदा बहुत खुश रहता है। जब सीरियस हो जाता है रिलेशनशिप में तो वो अपने मम्मी पापा के साथ में इनसे मिलने आता है और ये चली जाती है किसी और के साथ में सेक्स करने, और बाद में ये बहुत सारे लोगों के साथ में जब सेक्स कर चुकती हैं तो बहुत टाइम के बाद उससे मिलती हैं और कहती हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, और वो बंदा भाई बहुत खुश हो जाता है कि अरे भाई, तो कहते हैं चलो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, तो कहती है नो नो, द बेबी इज नॉट योर्स, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स, The baby is not yours. तो वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है, और जब चिल्लाना शुरू करता है तो फिर दामिनी को विक्टिम दिखाया जाता है और दामिनी उसके ऊपर चिल्लाती है तुम बहुत जजमेंटल हो रहे हो, तुम मुझे जज कर रहे हो। They must have slept together. You know what? Guess what? You are right for once. I did. ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, इतना ही क्या है। और दामिनी को विक्टिम दिखा दिया गया और उस लड़के के साथ जिसके साथ इतना गलत हुआ, वो अच्छा खासा इनके साथ रिलेशनशिप में था और उसके साथ इन्होंने चीट किया, उसको इस सीरीज में नॉर्मलाइज कर दिया गया कि ये तो कुछ गलत है ही नहीं। गलती किसकी है? गलती उस बंदे की है जो इनके साथ रिलेशनशिप में सीरियस हुआ। दामिनी ने कुछ गलत नहीं किया। दामिनी ने क्या किया? दामिनी ने चीट ही तो किया। चीट करना कुछ गलत है ही नहीं, कुछ गलत नहीं है, वो बंदे की गलती है जो इनके साथ रिलेशनशिप में सीरियस हो रहा है। ब्रो, आई एम नॉट गेटिंग द आइडिया ऑफ पोर्ट्रेइंग सेक्स इन दिस कैजुअल वे, लाइक इट्स अ होल डिफरेंट प्रोसेस, और उसको इतना इजी दिखाया जा रहा है कि भाई कहीं भी जाओ, किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लग रहा है तुरंत हो जाता है। Animal discourse that seems to carry on as the movie clocks in one of the biggest second weekends in Hindi film history are: 1. Are acts of violence and against the opposite for a narrative perspective justified if the characters meet a justifiable end, aka death or having to lose everything? And 2, when did film analysis become about critiquing the intellectual capability of an adult audience versus the content of the film? Everyone has recently been talking about the glorification of violence and use in Animal, and how through many portions of the film, especially the second half, it seemed like Sandeep Reddy Vanga had sprinkled the dialogues with statements for shock value more versus how the character will organically react in a situation. This ranges from the dig at Rashmika complaining about her pads or cheating on her and telling her that she doesn't have the capability to cheat on him and that he will never let a man near her. I always assumed Ranveer's character in Animal to be a mentally deranged and obsessive fool who borders on becoming a barbarian in the second half versus a hero who I should idolize. Irrespective, this made me think about the context of the glorification in other films. Gangs of Wasipur is a celebrated film that is considered in many people's goated list of Indian movies. A story of a man who learns that his father was killed and promises to not grow his hair back until he has avenged his father's murder. Sardar Khan, played by Manoj Bajpayee, was iconic in every way, considered to be one of the best performances of the
2010s. The protagonist is showcased to cheat on his pregnant wife. But what's interesting is that the sequence of him getting caught is presented as a comedic sequence for the entertainment of the audience versus the character having any remorse for his partner. The excessive of Sardar Khan is given free rein by the wife herself to do whatever with whoever he wants, just that he should not bring it back to their home. Sex with anyone. मूवी में भूमि का जो कैरेक्टर है वो ऑर्गेजम फील करना चाहती है और वो कर भी लेती है फाइनली, और जब उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तूने कैसे किया तो उसका ये जवाब रहता है। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो Look, having orgasm or feeling orgasm is the basic right of every man and woman, and there is nothing wrong in it. My point is why these movies are normalizing casual sex on the name of orgasm. If you are in a relationship and you are not getting satisfied, then talk to your partner. इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि जाकर के तुम किसी दूसरे बंदे के साथ में रिलेशनशिप बना लो कैजुअली, और किसके साथ बना रहे हो ये भी नहीं पता है, और अपने पार्टनर को चीट कर दो। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फेमिनिस्ट मूवी है बॉलीवुड की, और उस मूवी में 4 वुमेन्स की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें एक ओल्ड लेडी होती है और वो यंग लड़की बन करके लड़कों से फोन पे बात करती है, जिसमें एक लड़के को वो फंसाती है। अब इसको बोलते हैं हनी ट्रैपिंग, लेकिन हनी ट्रैपिंग को बहुत ही नॉर्मली दिखा दिया गया इस मूवी के अंदर, और जब वो लड़का इससे रियल लाइफ में मिलता है तो वो तो भाई गरमा जाता है, उसके साथ एकदम ही गलत हुआ। कॉल पर ये लोग सेक्स चैटिंग एंड ऑल करते थे, बट जब रियल लाइफ में वो लड़का मिला तो उसकी तो बत्ती गुल हो गई, भाई उसके साथ तो एकदम ही गलत हुआ। माई पॉइंट इज कि देखो, सेक्सुअली एक्टिव होना किसी भी एज में गलत नहीं है। द थिंग इज कि कंसर्न, आप उसको बताओ कि आपकी क्या एज है, आप कौन हो। आपने तो ये नहीं बताया, इसको हनी ट्रैपिंग बोलते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने इसको बहुत ही आम कर दिया। द थिंग इज, इसी मूवी में इसी लेडी को विक्टिम दिखाया गया कि विक्टिम ये है। अब जरा जेंडर चेंज करो। एक कोई बुढ़ा आदमी है जो कि यंग लड़का बन करके कॉल पे बात करता है किसी यंग लड़की से और उसको फंसा लेता है, और बाद में वो लड़की जब इससे रियल लाइफ में मिलती है तो वो तो एक थप्पड़ मारेगी इसको कि ये बुढ़े मेरे साथ इतना गलत किया। भाई ऑब्वियसली लड़की के साथ गलत किया, क्योंकि कंसर्न तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको तो बताया ही नहीं कि मेरी एज क्या है। तो भैया यहाँ भी तो ये लड़के के साथ यही चीज हुई, लेकिन यहाँ पे विक्टिम इस लेडी को दिखाया जा रहा है, जबकि रियल लाइफ में अगर कोई बुढ़ा किसी लड़की के साथ करता है तो विक्टिम कौन हुआ? लड़की हुई ना। तो वहां पर विक्टिम कौन हुआ? वो लड़का हुआ। बट बॉलीवुड क्या पोर्ट्रे कर रहा है? नहीं, वो ओल्ड लेडी विक्टिम है। इसी मूवी में एक और कैरेक्टर है लीला नाम का, जो कि अपने ही वेडिंग वाले दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में जाकर के सेक्स करती है और इजीली आकर के दोबारा वेडिंग ज्वाइन कर लेती है, और उसको कुछ हुआ ही नहीं ऐसे पोर्ट्रे करती है। अभी एक और सीरीज आई मेड इन हेवन करके, जिसमें तारा नाम की एक वेडिंग प्लानर To ask me anything, and that's what you asked. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. Can you pan this camera on this lady here? और देखा जाए तो रणवीर सर भी एक तरह से प्रोड्यूसर, क्योंकि घर का पैसा लगा हुआ है। Excuse me. ये किसने बोला? हाँ, ये अज्यूम करना बिल्कुल गलत है। ये मेरे खुद के पैसे हैं। Excuse me. तो रणवीर सर से क्या मेहनत है। हमने आपकी जितनी भी मूवी देखी है सारी वुमेन सेंट्रिक मूवी है। आगे चल के आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में नजर आएंगे, या फिर आप अपना वेट लॉस करने का भी कुछ सोचा है? Women centric और वेट लॉस का क्या है? ग्लैमरस रोल होते हैं। मैं जो काम कर रही हूँ उससे बहुत खुश हूँ। आप लोगों का नजरिया बदल जाए तो बहुत अच्छा। जो आजकल एक दौर था बॉलीवुड की हीरोइनों का कि एक तरीके से कहा जाता है फिल्म में एक अचार के रूप से इस्तेमाल की जाती थी। अचार? मतलब थोड़ा सा किरदार रहता था। वो खत्म हो गया। That's the first one, yeah. वो आपने चेंज किया। जोईता, that's the लेकिन first. रानी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आचार, पापड़ और आचार. मतलब एक छोटा सा किरदार। I don't know. Actresses are Sindhi यार. तो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव करना कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हॉट और स्टीमी सीन्स ही होते हैं ज़्यादातर। जी, अभी आपने जैसे प्रोमो देखा है, पिक्चर तो आपने पूरी देखी नहीं, जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिर्फ हॉट और स्टीमी हमारी है चीज़ें यहाँ पे। हॉट और स्टीमी अगर चलो मैं पिक्चर में नहीं करूँ, लेकिन अगर मैं कोई इवेंट में कुछ ऐसे कपड़े पहन लूँ तो आप लोग उसको भी तो हॉट और स्टीमी बना के यूट्यूब पे फैला देते हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? बहुत अच्छा बिहेव करता है उनके साथ में, इसलिए उनको कुछ स्पाइसी चाहिए था, इसलिए वो डैनियल के साथ में मिल करके अद्वैत पे चीट कर रही हैं। अब उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि आई एम हैविंग अ परफेक्ट मैरिज एंड आई एम हैविंग अ परफेक्ट अफेयर।
25 जनवरी 2019 को 4 More Shots नाम की एक सीरीज रिलीज होती है जिसमें 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की कहानी है। सिद्धि, अंजना, दामिनी, उमंग। सिद्धि जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है और उसको कुछ होती है और वो ऑफिस में अपने बॉस को सेड्यूस करती है और उसके साथ में इंटरकोर्स करती है और उसका वीडियो वो शेयर कर देती है ताकि बॉस से शादी हो जाए। और जब बॉस से शादी हो जाती है तो यही बॉस इसको चीट कर देता है और जब बॉस चीट कर देता है तो ये डाइवोर्स फाइल करती है और जब इनका डाइवोर्स फाइल हो जाता है तो ये एक अच्छे से बंदे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है। बंदा बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, लेकिन चूंकि बॉस बहुत अमीर है तो एल्यूमिनाई में डाइवोर्स सेटलमेंट में इनको चाहिए होता है बंगला, तो ये चली जाती हैं दोबारा अपने एक्स हस्बैंड यानी बॉस के पास में और उसके साथ हो जाती हैं फिजिकल। और बाद में ये अच्छा बंदा जिसके साथ ये करंट रिलेशनशिप में रहती हैं वो जब इनसे कुछ पूछता है तो इनका ये जवाब रहता है, Don't think you can ever make that decision for me. I mean, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन आपका पार्टनर क्या आपसे कुछ पूछे भी ना, इतना भी उसका हक नहीं। बट ये सीरीज यही दिखा रही है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम पूछ भी नहीं सकते हो। माई क्वेश्चन इज व्हाट न्यू जनरेशन इज लर्निंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सीरीज। क्या दिखाया जा रहा है इस सीरीज में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी न्यू जनरेशन को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए, मिसलीड करने के लिए एक और सीरीज आई थी, एक और मूवी आई थी जिसका नाम था वर्जिन भानुप्रिया। और पूरी मूवी के अंदर एक ही मकसद था कि वर्जिनिटी एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको जल्दी से तोड़ देना चाहिए। ये इनका पूरा मकसद था। मूवी के अंदर यही प्रमोट हुआ है। आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं 14 की थी। मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। वर्जिनिटी तोड़ने के लिए अगर आपको किसी से जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो वो भी इस मूवी ने नॉर्मलाइज किया है। एक सीन है जहाँ पर एक्ट्रेस लड़के के साथ जबरदस्ती कर रही है और बोल रही है अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कर रही है तू? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसी सीन में तुम अगर जेंडर चेंज कर दो, क्या कोई सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये एक्सेप्ट करेगी? विदाउट कंसर्न कोई लड़का ऐसे किसी लड़की से जबरदस्ती करे, इसे रेप बोलते। तो तुम किसी लड़के के साथ में ऐसा कैसे नॉर्मलाइज दिखा सकते हो कि आप उसके साथ बोल रहे हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं और लड़के के साथ जबरदस्ती करो? अगर उस कंसर्न ही नहीं लिया ना आपने, अगर लड़के का मन ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो उसके साथ जबरदस्ती? लेकिन बॉलीवुड इसको नॉर्मलाइज कर रहा है ऑन द नेम ऑफ फेमिनिज्म। भाई बॉलीवुड इसको नॉर्मलाइज कर रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमारा ये राइट है। साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऐसा ऐसा कर का आंखा बनाकर, Why do you stand? देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, इस मैडम की, कि लड़के लड़कियों को घूरते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पर लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को, तो ये चीज भी एड्रेस करनी चाहिए। और अगली बार कोई भाई ऐसी वीडियो बनाओ ना तुम, तो उसमें इस बात को जरूर उठाना कि लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को, और वो भी गलत बात है। I spent like half my salary on this. Like I want people to see it, baby. मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, मुझे इस औरत से प्यार हो गया। भाई सुनो मेरी बात, ठीक है? इतना चूतिया कौन होता है जो अपनी आधी सैलरी की ब्रा खरीद लाए? अब सपोज मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ मान लो, तो मैं यार बहुत बड़ा चूतिया हूँ अगर मैं 25,000 रुपए के कच्चे बनियान खरीद के ले आऊंगा। यार क्या तू ये झूठ बोल रही है, या फिर ये 500 रुपए कमाती है? और अगर ये 500 रुपए कमाती है तो मैडम उसको सैलरी नहीं कहते, उसको बोलते हैं हम दिहाड़ी। और इसमें वीडियो में मैडम बोल रही है कि आई वॉन्ट पीपल टू सी इट, मतलब अपनी ब्रा स्ट्रैप के बारे में। तो आप प्लीज मेरे को क्लियर कर दो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज क्लियर करो कि ब्रा स्ट्रैप देखनी है या नहीं? क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो तुम कहोगे ए रेपिस्ट ब्रा स्ट्रैप देख रहा है, तुम कर दोगे अपना वुमेन कार्ड दिखा के। तो प्लीज मेरे को ये चीज क्लियर करो। और अगर तुम्हें कोई देख रहा है ना तो यार SPUM स्पम, You know? टच मत करो, मैं पवित्र हूँ। हाँ राखी तुम पवित्र हो। मैं नोरा फतेही का मंगेतर हूँ। शेरलिन चोपड़ा कुपोषित अफ्रीकी बच्चों की मुंह बोली माँ है, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट के लॉन्डो को इंग्लिश बोलनी आती है। ये सारी की सारी बातें सच्ची ही तो है। इसलिए आज मैंने बाल कटवा दिए। अरे बहुत बढ़िया किया, बाल कटवा लिए बहन। अब लगे हाथ दिमागी बीमारी की दवाइयों का पर्चा भी लिखवा ले, और पागल पशु पक्षी इलाज और पुनर्वास योजना के तहत नजदीकी अस्पताल देख के 3 हफ्ते के लिए अपने आप को भर्ती करा। और एनी टाइप ऑफ शेमिंग इन फैक्ट। बट यही माता जी जो सबको कहती है आई एम अ गॉडेस, आई एम नॉट फैट, यू शुड नॉट शेम एनीबॉडी, ये एक बेचारे ऐसे लड़के को शेम करती हैं बिकॉज हिज डिक इज स्मॉल एंड ही फिनिशेस टू अर्ली व्हाइल हैविंग सेक्स। एक सीन में ये एक लड़के के साथ सेक्स करती हैं जिस लड़के ने अपेरेंटली इनको एक स्टैंड अप कॉमिक बनाया होता है, इनको हेल्प करी होती है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कवर करने में। बट ये क्या करती हैं, उनके साथ सेक्स करके बानी को फोन करती है कि यार इसका तो बड़ा छोटा सा है, एंड ही फिनिशेस लास्ट। तो यार why these double standards, right? Lands, can't neck, nibble, nibble, cleavage, tummy, gobble, gobble, go in, 5 thrusts, get out.
तो मुझे भी रट गया यार। और सिद्धि मैडम इस सीजन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाती हैं, पर वो बनने के बावजूद भी वही थके पिटे एस बूस पैंटी ब्रा कच्चे बनियान ये वाले जोक्स जो आजकल एक स्टेपल हो गए हैं इंडियन फीमेल कॉमिक्स के बीच में कि भाई ये बोल दो और हा 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 सब हंसेंगे, बूब्स बोल दो हा हा सब हंसेंगे, मैस्टरबेशन बोल दो ओ माय गॉड। तो भाई वो ऐसे ही गंदे से गंदे थके पिटे जोक्स मार मार के एक स्टैंड अप कॉमिक बन जाती हैं। जब भी वो स्टेज पे चढ़ती हैं शी हैज अ जोक अबाउट मैन ईदर मैस्टरबेटिंग और हाउ स्टूपिड मैन लुक व्हाइल मैस्टरबेटिंग। Really your destination. Yes, Riya, marriage is nobody's destination and Sonam Kapoor realizing the fact कि उसके बॉलीवुड करियर के टोबू साइकिल की चेन अब उतर चुकी है एंड आनंद आहूजा का नेटवर्क लगभग 4000 करोड़ रुपए है, तो तुम्हारी खुद की बहन इस मैरिज के डेस्टिनेशन पे बैठकर अपने पति की इस्टेब्लिशमेंट के नॉन स्टिक तवे पे अपनी बेफिक्री की जिंदगी के पराठे सेक रही है। सो रिया, think twice before you question the construct of marriage because marriage can mean differently to different people, your sister being the topmost example of it. अरे यार शादी कोई अचीवमेंट नहीं है पहली बात। Choosing the right person to marry and then carrying out a successful marriage is one of the biggest achievements in life for every man and every woman by every real world logic. But जब तक ये सूडो फेमिनिस्ट्स मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे लुक डाउन अपॉन ना करें, जो लोग मैरिड हैं 30 से नीचे हैं उनको ये ना बताएं, ये ताना कसी ना करें कि भैया हमने तो कोई शादी नहीं करी, हम तुमसे ज्यादा सुखी हैं, हम तुमसे ज्यादा सुपीरियर हैं, तब तक इनको एम्पावर्ड फील नहीं होता। Proud of myself also that I'm over 30 and unmarried. होगा इन 4 कैरेक्टर्स के ऊपर। सीजन 2 शुरू होता है सिद्धि के साथ, जो हर बार की तरह इस बार भी एक नॉन एग्जिस्टेंट रीजन पर दहाड़े मार मार के रो रही होती हैं। पैसा है ना यार, तो नॉन एग्जिस्टेंट रीजन ही होगा परेशान होने का। तो रो रही होती है और वो बानी को फोन करती हैं और कहती है कि बानी मैं तो मर जाऊंगी, बानी मेरे से नहीं किया जाएगा, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी मुसीबत को मोल लूं, तो मैं मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो बानी कहती है तू रुक जाओ मैं कुछ करती हूँ। Sibs is in trouble, we need to help her. तो बानी मैडम क्या करती हैं, अपनी बाकी तीनों दोस्तों के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं अब क्या करें। तो उनमें से 2-3 दोस्त उनकी होती हैं, वो सजेस्ट करती हैं इनके मम्मी पापा को बताते हैं सिद्धि के इंडियन एम्बेसी को कंसल्ट करते हैं या फिर लेट्स गो टू द होटल व्हिच शी स्टेइंग एट। बट बानी कहती है नहीं, ये तो सारे दिमाग वाले काम है, हम तो दिमाग वाले, ये तो दिमाग वाला सीरियल ही नहीं है, तो हम ये वाले काम क्यों करें। हम एक काम करेंगे, हम अपने बस्ते बांधेंगे और अपने दिमाग को अपनी कान में डाल के इस्तांबुल चलेंगे सिद्धि को ढूंढने। If you guys don't want to come, don't come. I'm going. वहां जाके ये उसको ढूंढती हैं, ये किसी को भी नहीं पता कैसे ढूंढती हैं, पर ढूंढ लेती हैं। और जैसे ही सिद्धि के कमरे का दरवाजा खुलता है, सिद्धि! ओह माय गॉड, सिद्धि सारा का सारा स्ट्रेस बिस्तर पे तोड़ तोड़ के एक मेल हुकर के साथ सेक्स करके निकाल रही होती है। और फिर मुझे लगता है वाह क्या स्टोरी है मैन। वहीं से आई गॉट कोई टॉपिक आता है तो दे आल्सो फील दैट वी आर हेटिंग ऑन देम। टारगेटेड और आइसोलेटेड तो हम तब फील करेंगे ना जब इस ताइवानी बंदरों के नहाने की फुटेज जैसी फिल्म को कोई देखेगा। मुश्किल से मुश्किल 5 लोगों ने इस आंखों को चुंधिया देने वाले चंद्र ग्रहण को थिएटर में जाके देखा होगा, जिन 5 में से एक बदकिस्मत मैं हूँ और बाकी 4 गुरुपति होंगे तुम्हारे 12 प्रोनाउन वाले दोस्त, जो तुम्हारे हर चुतियाबे पे गोगल या क्वीन ये कर देते होंगे। आई गाइस मैं ढूंढ क्या रही हो दीपू? Two bona fide superstars that make one blockbuster of a couple. ब्लॉकबस्टर ऑफ अ कपल? अरे थांबा चुपड़ी चाची थांबा, इन दोनों का कपल ना विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वाइब दे रहा है, और तुम्हारा ये चुतियापे की गोद भराई जैसा एपिसोड प्रूफ है इस चीज का। प्लीज हेल्प मर्द हेल्पलाइन। हाय गाइस मैं शांतनु, और कहां है वो प्यारी चुलबुली और नटखट सूडो फेमिनिस्ट जिन्होंने सिलेक्टिवली आउटरेज करके रणबीर कपूर के कंप्लीट कैरेक्टर को असैसिनेट किया था इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज ही टोल्ड हिज वाइफ कि तुम्हारे लिप्स पे ये वाला लिपस्टिक शेड अच्छा नहीं लगता। सॉरी माय बैड, शायद वो बिजी होंगी 6 रंग के बाल रंगवाने में, नथुनी छिदवाने में, बायो में कैट मोमा लिखने में और जेंडर पे गैप के फ्लॉड लॉजिकल को जबरदस्ती और लॉजिकल बनाने में। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, इतने बिजी शेड्यूल में दीपिका का नेशनल टीवी पे टॉक्सिक होना, अपने पति को एक रिबाउंड बॉय बता देना और इसी के चलते उसको ऑलमोस्ट रुला देना, इतनी छोटी सी चीज पे कहां नजर गई होगी, इतनी बिजी चल रही है यार। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां लड़कों से कुछ सवाल पूछना चाहती है। बहुत सारे मन में इनके सवाल हैं, उनका एक एक करके सवाल लेंगे और एक एक करके जवाब देंगे भी अपने स्टाइल में। तो सुनते हैं क्या सवाल है इनके। Why don't you change your underwear more often? Like,
জলের সাথে দুশ্মনী আছে? इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, दोनों को इक्वली ट्रीट करता हूं, इसलिए जवाब भी उसी हिसाब से दूंगा। तो आइए इसके सवाल पे आते हैं। तो ये टाटा 407 पूछ रहा है, मैडम हम लड़कों से पूछ रही है कि यार तुम अपना अंडरवियर 4-4 दिन तक कैसे चला लेते हो और चेंज क्यों नहीं करते हो, मतलब क्या मजबूरी है, तुम्हें सूख नहीं आती क्या? तो भाई मैं इस मैडम को बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, हम लड़के ऐसे ही होते हैं, हम सूगले होते हैं, बल्कि 95% लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी अंडरवियर 4-4 दिन 5-5 दिन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस है, हमारा अंडरवियर, हम उस अंडरवियर के साथ कुछ भी करें भाई, उसे काटे घोले फेंक दें, 4 दिन चलाए 5 दिन चलाए, तुम्हें क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे को पता तुम्हें इस भाषा में समझ नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था, तो तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ भाई। फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं, और ये बिल्कुल सही बात भी है भाई, लड़का लड़की सब बराबर है, क्योंकि ये सब होने से पहले हम एक इंसान है और दोनों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए। और कोई भी अगर चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो इस बात से डिसएग्री करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आई एम रियली सॉरी, मेरे को बोलना पड़ेगा भाई तुम चूतिया हो और तुम इस सोसाइटी में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं। थके पिटे जोक्स मार मार के एक स्टैंड अप कॉमिक बन जाती हैं। जब भी वो स्टेज पे चढ़ती हैं, शी हैज अ जोक अबाउट मैन ईदर मैस्टरबेटिंग और हाउ स्टूपिड मैन लुक व्हाइल मैस्टरबेटिंग। तो आई डिडंट फाइंड एनी ह्यूमर, बाकी तुम देख लो भाई क्या करना है इसका। आप मुझे बताओ, आप लोग हिले हुए होते हो इसीलिए हिलाते रहते हो या हिलाते रहते हो इसीलिए हिले हुए हो? वो बोलती हैं कि माय मॉम हैज बीन इन्वॉल्वड इन माय लाइफ सो मच दैट द नेक्स्ट टाइम शी स्टेप्स इनटू माय रूम शी वुड टेल मी हाउ टू सक अ डिक or how to give a blowjob. My mother though has graduated to giving me pointers on sex and give me point by point instructions on how to give a blowjob. मैंने कहा भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के माँ बाप ने सेक्स एजुकेशन का हकला के एस तो अब बोलना सीखा है, तुम ये मुझे कह रहे हो मैं अपने बाप को जाके बोलूं कि मुझे बताओ कि हाउ टू ईट अ पुसी? क्योंकि 90% आदमी को करना ही नहीं आता है। मर्दों को सेक्स करना नहीं आता, और पिक्चर में इसी बात को बड़ी ही कन्वीनियंटली बार बार रिपीट करा गया है, क्योंकि इनको चाहिए मर्द जॉनी सिंस जैसा। लेकिन यहीं पर रोल रिवर्सल कर लो और सोचो, अगर एक लड़का इस फिल्म के अंदर ये बोल देता कि मुझे मोटी में कालू टिक्की जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, जो बाजरे की बोरी की तरह बस पड़ जाती हैं बिस्तर पे और एक्टिवली सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो सोचो अधेड़ उम्र की सिंगल सूडो फेमिनिस्ट महिलाएं इस फिल्म के साथ ट्विटर पे कितना भयंकर BDSM करती। All the social conditioning and patriarchal conditioning that generally the society has. I was complexed about the way I looked, and just growing up I hated everything about myself. I hated everything about myself. अरे भूमि दिमाग से घूमी, इसको बोलते हैं going through teenage and puberty. Every teenager and even girls and boys in their early 20s go through major physical and psychological changes, जिसकी वजह से the feeling of self doubt and self hatred common होता है इस Stare at my crotch. Like, why? Like, এতটাও লেভেলে থার্কি হওয়ার কোনো দরকার নেই, ওকে? ये पूरी किलो गेन हो गया ना, they are my kilos. You cannot comment on that. तो शायद तुम्हें अब तक पता लग गया हो ये लड़कियां कितनी ज्यादा दोगली हैं। अब तुम्हें मैं प्रूव करूंगा। इसमें बोल रही है कि these are my kilos, तुम्हें क्या है, मैं चाहे बढ़ूं घटूं, मतलब इस टाइप का कुछ बोल रही है। और वो याद है वो लड़की बोल रही थी कि तुम अंडरवेयर क्यों पहनते हो 4-4 दिन, तो अब ये चाह रही है कि हम तो तुम्हें जज करेंगी, पर तुम कौन हो हमें जज करने वाले? होता कौन है लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकने वाला? अब आते हैं इस मैडम के पॉइंट पे कि these are my kilos, मैं बढ़ूं घटूं तुम्हें क्या है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड पे चल रही है और किसी दूर से आदमी ने रुक्का मार दिया, ओ मैडम तेरे 2 किलो बढ़ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। किसी दोस्त ने आके बोला होगा। मेरे को बहुत सारे दोस्त बोल देते हैं कि वो साढ़े खाना खा लेकर पैंट से थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। मैं इसको अच्छे वे में लेता हूँ, ऐसा थोड़ी वो साढ़े तुझे क्या है, मैं अपने खाऊं ना खाऊं, these are my kilos, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता भाई। तो ये क्या ही बोलूं मैं, इनको समझ नहीं। हम बात कर रहे हैं द फकिंग इरिटेटिंग डी। एक तो ये सबका नाम ABCDB। अबे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नाम दिया है बेंचो, तो उसका निकनेम बना लो ना, उसका लेटर नेम क्यों बना लेते हो? 3 एपिसोड तो मुझे यही समझने लग गया कि ABCD कौन थी। उमंग को तो मैंग्स कर दिया। 4थे एपिसोड तक मैं अपनी बीवी से पूछता रहा इसका क्या निकनेम है यार, मैग्स है या मैंग्स है? तो भाई डी की कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक लड़के के साथ सेक्स करो, फट से अगले 4 हफ्ते के लिए किसी और के साथ प्यार में पड़ जाओ, फिर 4 हफ्ते के बाद उस लड़के को बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूं ले, और जब वो लड़का खुश होने लगे तो उसे फट से बता दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इन शॉर्ट, जो तुमसे प्यार करता है उसी गांड पे ऐसी लात मारो कि वो तुम्हारे पास घूम के कभी वापस आए। वेरी सिंपल। This is the happiest day of our lives. The baby is not yours. दामिनी के कैरेक्टर के साथ 2 मेल कैरेक्टर्स एसोसिएटेड हैं, जिनमें से एक प्ले करा है प्रतीक बब्बर ने। इन भाई साहब ने बॉडी तो बड़ी उम्दा बना ली है, पर अगर इतना ही टाइम अपनी एक्टिंग पर जाया करते तो शायद ये वेब सीरीज ना करनी पड़ती। दूसरे मेल कैरेक्टर हैं हमारे बुधिया सिंह, मिलन सुमन। तो भाई अगर किसी लौंडे की शो में चांदी हुई है ना, तो वो है मिलन सुमन।
वो कैसे कि एक जनरल सेंसिबल सिनेरियो में एक लड़का अगर एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है तो वो लड़की लड़के के पास आके कहती है तुम इस बच्चे के बाप हो और हम दोनों इसको मिलके पालेंगे, और आदमी की गांड फट जाती है। लेकिन इस केस में दामिनी जी जाती है मटकती मटकती मिलन सुमन के पास और कहती है तुम इस बच्चे के बाप हो बट तुम इसको मत पालना, बिल्कुल मत पालना इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। अगर तुम पालना भी चाहते हो, वो कह रहा है सुनो तो मेरा, नहीं तुम इस बच्चे को नहीं पालोगी। तो वो कह रहा है चलो ठीक है, बड़े ही स्मूथ तरीके से बोलता है हम करेंगे को पेरेंटिंग। टू बीइंग को-पेरेंट्स। अरे बहनचोद, अभी तक लोगों को ओपन मैरिज नहीं समझ आ रहा था, 4 एपिसोड हुए नहीं, तुमने बहनचोद दिया नया भांग घोषणा इसमें लगा दिया को पेरेंटिंग का। समझाओ मुझे होता क्या ये। और फिर दामिनी एक्सपेक्ट करती है प्रतीक बब्बर से कि भाई वो बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो इस चीज को लेके, और फिर एज अ नॉर्मल गाय और एज अ नॉर्मल गाय और गर्ल वुड डू इन दिस केस, वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है, वो दामिनी से बात करना बंद कर देता है। और फिर दामिनी को लगता है यार व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, आई फेल इन लव विद हिम but I got pregnant by another guy and I told him that I love you but I have a child of another guy in my tummy which is not yours. मैंने गलत क्या किया? दामिनी ने तो कुछ गलत नहीं किया है। अगर एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, अपने दोनों ने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, तो दोनों का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। इस पिक्चर में रोका चल रहा होता है भूमि पेडनेकर का एक बहुत ही शरीफ और बड़े अच्छे लड़के से जो उससे बहुत प्यार करता है, एंड दिस वुमन इनवाइट्स all the men she has slept with in the past 30 days to her रोका। उस रोके की पार्टी में इसका पति इसके साथ डांस कर रहा है और ये दारू पी के हर उस बंदे से, अनिल कपूर से, करण कुंद्रा से और 1-2 और है लफंडर, उनके साथ जाके हाथ मिलाती है, एंड शी इज एट द सेम टाइम फैंटेसाइजिंग कि मैं अपने रोके की रात में अगर इनके साथ सेक्स करूंगी तो कैसा लगेगा। हाउ इज दिस कॉमेडी? कैन somebody tell me how is this supposed to insinuate a laugh? जीवन ही था गन्नू, तो चिपकी हुई थी उसके साथ। जो इस पिक्चर की फंडामेंटल स्टोरी भी है वो ये है कि वो जितने भी लड़कों के साथ सो रही है वो उसको ऑर्गेजम नहीं दिला पा रहे, लेकिन पिक्चर के एंड में तुम्हारे को ये पता चलता है कि भूमि मैडम क्लाइमैक्स सेल्फ स्टिमुलेशन से ही रीच कर सकती हैं। अरे गन्नू टूट गई थी ना। तो यहाँ भूमि के कैरेक्टर को एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली देखी जाती है उन मर्द और औरतों में जो सेल्फ स्टिमुलेशन काफी ज्यादा करते हैं, एंड व्हेन दे एक्चुअली गेट इनटू द एक्ट ऑफ हैविंग सेक्स वो क्लाइमैक्स रीच नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, इतनी गंदी स्टोरी लिखी गई है, इतना बेकार स्क्रीन प्ले है पिक्चर का कि इन्होंने इस मेडिकल इशू को समहाउ रिलेट कर दिया पेट्रियार्की से। हस्त मैथुन की एडिक्शन से, सेल्फ स्टिमुलेशन की एडिक्शन से पेट्रियार्की का क्या लेना देना है? क्या कहानी लिखी है भाई ये पिक्चर की? क्या हदायत है? एक हस्बैंड को जिनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, उनका बच्चा भी होने वाला है, सेटिंग इनकी है एक ऐसे लड़के के साथ जो सेटल होना चाहता है। सेटल कौन होना चाहता है? वो चूतिया ना, तो इसी चक्कर में वो उनसे ब्रेकअप कर लेती है। तुम्हें शादी चाहिए, तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं नहीं पढ़ना चाहती दोबारा। एंड एंड्स अप हैविंग सेक्स, अ लॉट ऑफ सेक्स, सेंसलेस सेक्स विद अ गाय जो हार्वर्ड स्कूल से लॉ पढ़ गया है। अब जो हार्वर्ड से पढ़ गया है तो कूल है ना, सेक्स तो करना पड़ेगा। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ कौन सेक्स करेगा? और यार मुझे एक बात बताओ, ये ओपन मैरिज क्या होती है? अंजना को ये हार्वर्ड वाला लौंडा जो वहां से लॉ की डिग्री लेके आया होता है, वो चूतिया बनाता है ये बोलकर कि आई एम इन एन ओपन मैरिज, मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता हूँ और मेरी बीवी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अंजना को लगता है कितना सच बोल रहा है यार। ऑफ कोर्स हार्वर्ड से आया तो सच बोल रहा होगा, है ना, इतना कूल लौंडा है, झूठ थोड़ी बोल सकता है वो मान जाती है और वो कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो भाई जब ये सेक्स रैकेट का भांडा फूट जाता है और सबको पता लगता है ये लॉयर जी और अंजना जी एक दूसरे 14 पट्टी में लगे हुए हैं। What the hell? What the fuck is going on? तो अंजना जी बड़े ही प्यार से, बड़े ही कन्वीनियंटली उनके पास जाती है, रोते हुए उन्हें कहती है तुमने मेरे से झूठ बोला। टू विच ही रिप्लाइज कि यार जो भी है जैसे भी बोला, यू ऑल्सो वॉन्टेड इट, विच इज आई काइंड ऑफ अग्री दैट शी वॉन्टेड इट। क्या सोचती हो? नहीं, It's her choice. देन एट द एंड अंजना बैठ के रो रही होती है और सोचती है यार मैंने गलत क्या किया। पहले मैंने अपने एक्स हस्बैंड को किस करी, फिर मैंने एक ऐसे लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया जो मेरे को प्यार करता था और सेटल होना चाहता था, और फिर मैंने एक बंदे का घर तुड़वा दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। मैंने गलत क्या किया यार? मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। Why is my life like this? मतलब नहीं पता, सूडो फेमिनिस्ट का बहुत भारी शब्द है, मैं आप लोगों को अर्थ बताता हूँ। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स, तुमने सुना होगा। लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग इनके बारे में बोलने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इनके पास है वुमेन कार्ड। आपने सुना होगा फुटबॉल में रेड कार्ड होता है ना, जिससे ऐसे दिखाता रेफरी और प्लेयर बाहर हो जाता है। जो इनका कार्ड है वुमेन कार्ड, वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, उससे जाता है आदमी
सीधा जेल। तो भाई मैं तो बिल्कुल सोच समझ के बोलने वाला हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऑफेंड होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब गाड़ियां थूक देते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। Helped her chase her self confidence, discover her self confidence, but उसको डंप तो करना ही था because that's cool. यार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। नो दुख, नो दर्द, नो ड्रामा। अब आते हैं हम इस शो के ऑस्कर विनिंग कैरेक्टर पे, जो है अंजना जी। अंजना जी ने 3 लौंडों को एक ही साथ चूतिया बना रखा है। ये पजल थी, ये सुलझाने में मेरे को पूरे 2 घंटे लगे कि ये किसके साथ शादी करना चाहती हैं, किसके साथ सेक्स करना चाहती हैं और किसको ये चाहती है। तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी। और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। इस फिल्म के लॉजिक के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेक्सुअली लिबरेटेड एंड अनअपोलोजेटिक वुमन होने के लिए तुम्हारे मुश्किल से मुश्किल आधा दर्जन सेक्सुअल पार्टनर्स होने चाहिए, और उन आधा दर्जन सेक्सुअल पार्टनर्स में से आधे लौंडों को तुम्हारे को कंसिस्टेंट बेसिस पे शेम करना है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर तुम्हारे को डिप्लोमा इन सूडो फेमिनिज्म करना है। फॉर्म भरने से पहले सोच लेना। Best way to smash patriarchy is to achieve something. हाँ भूमि, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पेट्रियार्की को स्मैश करने। दोनों स्मैश करके पेट्रियार्की की नारियल की चटनी निकाल देंगे। और भूमि, किसी को हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि तुम्हारी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर थे शरद कटारिया, सेम फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। बालाजी टेलीफिल्म्स जो की प्रोड्यूसर्स है थैंक यू फॉर कमिंग के, वो कंपनी को फाउंड किसने किया था? जितेंद्र ने। और साथ ही थैंक यू फॉर कमिंग के जो को प्रोड्यूसर्स हैं उस कंपनी का नाम है AKFC, यानी कि अनिल कपूर फिल्म कंपनी। रिया कपूर क्या है? एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है नेपोटिज्म का, और उनकी फैमिली में वो नेपोटिज्म कहां से शुरू होता है? उनके पेट्रियार्क से, उनके बाप से, ही हिम से। एंड द सेम केस अप्लाइज टू हुम? टू एकता कपूर। तो जल्दी करो भूमि, स्कूटी स्टार्ट कर दी है मैंने, जल्दी बैठो, पेट्रियार्की को स्मैश करने निकलना है। हट जाओ भाई, भूमि आ रही है स्मैशिंग करने के लिए, हट जाओ। साल के बच्चों के सामने पेट्रियार्की को लेके एक बहुत ही स्टूपिड सी स्पीच देती है भूमि की। ये स्मैश द पेट्रियार्की वाली स्पीच से एग्रेवेट होके 14 से 15 साल के लड़के और लड़की जो ऑडियंस में बैठे होते हैं उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि मुझे नहीं पहननी ब्रा। कोई मुझे ये बताएगा कि एक 13-14 साल की बच्ची के अंडरगारमेंट से पेट्रियार्की का क्या लेना देना है? Best way to smash patriarchy. फिर इसी क्राउड में से 13-15 साल की एक और लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है नहीं करना मुझे पैरीपोना, यानी कि नहीं छूने मुझे अपने से बड़ों के पैर। कोई मुझे ये बताएगा कि पैरीपोना करने में या पैर छूने में, विच इज एक्चुअली अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, और हमारे कल्चर में तो जब भी लड़कियां पैर छूने जाती हैं तो बड़े रोक देते हैं और बोलते हैं कि लड़कियां पैर नहीं छूती। इट्स अ सिंपल बेसिक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। इससे पेट्रियार्की का क्या लेना देना है? Best way to smash patriarchy. पिक्चर के स्टार्टिंग शॉट में बच्चों का प्ले चल रहा होता है, एंड बाय बच्चे आई मीन जो बच्चे इसमें दिखाए गए हैं इस वाले शॉट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 साल के होंगे, इससे ऊपर के नहीं होंगे। अब इतने छोटे बच्चों को तुम क्या समझाते हो? तुम उनको गुड टच और बैड टच बताते हो ना, या फिर तुम उनको ये बताते हो कि भैया सेक्स क्या होता है और इंटरकोर्स क्या होता है? इस वाले पूरे के पूरे शॉट में प्ले चल रहा होता है और सपोजिटली भूमि की जो छोटा रोल प्ले कर रही होती है लड़की, वो आती है एंड समहाउ शी सेज कि नहीं ऐसे बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं। कैन यू प्लीज लेट किड्स बी किड्स? देयर इज अ रीजन व्हाई सेक्स एजुकेशन इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड टीन्स। ये मोरल पुलिसिंग नहीं है, ये बेसिक लॉजिक और कॉमन सेंस वाली बात है। पिक्चर में सेक्स कर लिया लड़की ने, सिगरेट पी ली, शराब पी ली, लेट नाइट पार्टी कर ली, नोबडी गिव्स अ डैम, करो जो करना है, बट लेट द किड्स बी किड्स, कीप देम आउट ऑफ इट। स्क्रीन प्ले, कहानी के बारे में तो कोई बाद में बात करेगा, पहले बात कर लेते हैं इस पिक्चर के डायरेक्टर की मेंटालिटी की। और जिसने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है उसको लिखते हुए ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कितना गलत है। On earth are you such a mama's boy? क्योंकि वो हमारी मम्मी है, उन्होंने हमको पैदा किया है, वो हमसे प्यार करती है, हम भी उनसे करते हैं, इसलिए हम ममाज बॉय है। आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, अगर आपको एक लड़की पहचाननी है ना तो उसका बिहेवियर देखना अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, और अगर वो ऐसा बोलती है ना कि भाई क्या तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो या मेरे साथ, तो भाई समझ जाना कि टाइम आ गया है कि उसको छोड़ देना है। थोड़ा बुरा लगेगा बट जिंदगी सुधर जाएगी। अब आते हैं इन सूडो फेमिनिस्ट लड़कियों पे। मैं तो इनको कसम से सुहा नहीं रहा था, मैं सोच रहा था मतलब किसी तरह बस मैंने झेला है इनको, जो रीच के बोलती है मेरे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। शायद तुम्हें पसंद हो, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज इनके चक्करों में ना पड़े।
एट द एंड आपका ही लॉस होगा। भूमि ड्रंक अपने घर के अंदर एंटर करती है, विच इज कंप्लीटली फाइन, और आके ये देखती है कि उसकी माँ जो पहले से ही ड्रंक है पार्टी कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देन भूमि का मूड खराब होता है, उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाके किचन में उससे ये बात पूछती है कैसी रही तेरी रात उस करण के साथ। इन रिस्पॉन्स टू दिस भूमि कहती है कि नहीं आपकी जितनी रोमांटिक नहीं रही। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सिंगल पेरेंट्स शुड नॉट मूव ऑन एंड गेट इनटू न्यू रिलेशनशिप्स, दे मस्ट, इट्स देयर राइट टू डू सो, बट हमारे कल्चर में एक शर्म का छोटा सा पर्दा होता है ना कि माँ या बाप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने अपने बच्चों के सामने ड्रंक होकर पार्टी नहीं करते, तो उसको सटली भी तो दिखाया जा सकता था ना। जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू शो कि भूमि की माँ कितनी स्टॉन्च फेमिनिस्ट है, यू मेड हर लुक एब्सोल्युटली रिडिकुलसली। Anyone, who the fuck are you to expect fucking loyalty even from your own pet dog? Who the fuck are you? Guys, welcome to People Fame. मैं हूँ आकाश और आज हम बात करेंगे। मुसलमान हूँ, कोक तो मैं हिंदू में थी, आज मैं मुसलमान हूँ। It's her choice. It's her choice and कमी जो है वो शायद आप में ही होगी। Maybe the problem lies with you. Check yourself first. होगी। और यही नहीं, नया रूपिया ने बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दी कुछ ये। चूतिया सुनाई थी, बोल रही हूँ 15 मिनट से बैंचोद बाल दिया था। It's her choice. से बैंचोद बाल दिया था। It's her choice. Her choice. बैंचोद। तो आप एक गंदी गंदी गाली देके वो भी सिस्टर के लिए करण कपूर की, आप ये बोलती हैं कि लॉयल्टी कई तेल लेने, बिकॉज शायद आपने यही सीखा है नेहा, इसलिए आप बोल रही हैं करुण को कि लॉयल्टी कहीं तेल लेने। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं कि किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए, पर आप जैसे सूडो फेमिनिस्ट नहीं ये भूल जाते हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट गिविंग द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग टू ओनली गर्ल्स एंड रिजेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू मेन। फेमिनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है इक्वालिटी। तो अगर जो बिहेवियर मेन के साथ होना चाहिए वही बिहेवियर वुमेन के साथ होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में, मैं मानता हूं इस बात को कि आपको हिट नहीं करना चाहिए, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर अगर लड़का हाथ नहीं उठा सकता तो लड़की भी हाथ नहीं उठा सकती। पंखे से लटक जाओ, मर जाओ, जहर खा जाओ, सुसाइड करो। अरे नहीं राखी, इतनी कैलोरी बर्न करके मरने की क्या जरूरत है यार। तू अपनी वीडियोस देख लेना, वो देखने के बाद तेरे प्राण अग्नि को साक्षी मान के स्वयं को ही हर 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। लोग ये पूछते हैं कि कैसा लगा, मजा तो आया होगा। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था। हाँ। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। और जब वही चीज लड़का बोलता है तो आप सब उस पर चढ़ जाते हैं, और साथ साथ आप चढ़ते ही नहीं है, गालियां दे के बात करते हैं। Guys, I understand, I reject any kind of hitting, either to children or to a female gender or a male gender. Any kind of hitting is bad. साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, पर हिपोक्रेसी से ज्यादा कुछ और नहीं सोचते ना कुछ और बोलते। यदि हम बात करेंगे रोडीज जैसे शो की, गाइस रोडीज जैसा शो जो इंडिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक शो है, जिसने हमारे कल्चर को एक सही राह दी है, जो हमारे यूथ है उसको एक सही रास्ता दिखाया है कि एटिकेट क्या होता है, कर्टेसी क्या होती है, सोसाइटी में रहने का असली मापदंड क्या होता है, कैसे आप ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्रू टू दिस एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू आप रह सकते हैं, मदरफकर, और कैसे आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके एथिक्स हैं, उसमें कितने छेद हैं। ये MTV रोडीज हमें दिखाता है, तो उस शो के बारे में बात करेंगे। और उस शो में कई प्राणी हैं, रणविजय सिंह, रघु राजीव तो छोड़ गए, पर रणविजय को छोड़ गए, रणविजय के साथ किसको छोड़ गए? प्रिंस नरूला को, रफ्तार। एंड बाय गॉड की कसम अगर मैं झूठ बोलूं तो मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को कल छोड़ती आज छोड़ जाए। ध्यान से देखो, राखी बाल कटवाने के बाद चाइल्ड्स प्ले की चक्की नहीं लग रही। I am Chucky, the killer dog. कैसी मर्जी लिपस्टिक लगाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लाल लगाओ, नीले लगाओ, पीले लगाओ, मर्जी तुम्हारी लगाओ। तो ये क्यों बोलते हो? मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया ना। वाह, दिमाग का बोफड़ा मत करो यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि दीदी के पास एक नया टॉपिक है, लिपस्टिक से हटके लाल पीली लिपस्टिक इनको छोड़ते साइड, नया टॉपिक है मेकअप। तो भाई किसी ने दीदी को बोल दिया, किसी राह चलते ने तो पक्का नहीं बोला होगा, कोई किसी को नहीं बोलता कि वो तेरा मेकअप ज्यादा है। किसी नोन ने बोला कि यार तुमने मेकअप ज्यादा कर रखा है, और मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है उसकी कि उसने दीदी को ये सब बोला। उसकी गलती ये है कि उसने सच बोला। तो यार अगर तुम्हारा कोई नोन बोल रहा है कि तुमने मेकअप ज्यादा लगा रखा है, तो शायद तुमने लगा रखा हो, कम कर लिया करो उसकी खुशी के लिए। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-15 साल का ही फर्क आएगा। Just because I like to dress up और या मुझे मेकअप करना पसंद है doesn't mean I want to be an actress.
Stop calling me Kareena Kapoor. भाई जिसने भी इसको करीना कपूर बोला है ना, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। और अगर किसी ने बोला है ना तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसका नंबर निकलवा के दे दो। मैं उसके खुद अपने हाथों से ऐसे चश्मे चढ़ाऊंगा कि कितने नंबर का चश्मा चढ़ रहा भाई तुम्हारे, और उसके दिमाग में जितनी भी बीमारियां हैं, डिफेक्ट है, सब तुम्हारा भाई ठीक करवाएगा। सर्जरी भी करवानी पड़ी ना, बैठे हुए हैं, उसका पैसा भी तुमको अब याद नहीं आ रहा, तुमको अब याद नहीं आ रहा, तुमको अब याद नहीं आ रहा। हाँ जी, हेलो, मर्द हेल्पलाइन से बात हो रही है। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी रेड फ्लैग बीवी ने जो पब्लिक में नहीं बोलना था वो बोल दिया होता रणवीर सिंह या फिर रणबीर कपूर ने, दैट आई वांटेड टू हैव फन एंड दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग मल्टीपल वुमेन। तो सोचो, ट्विटर पे जामुनी बाल महिला मंडल की सूडो फेमिनिस्ट ने इन दोनों लौंडों के कैरेक्टर्स का मूंग दाल का हलवा बना के उसके ऊपर मिसोजिनी का खोया डाल के खा लिया होता अब तक। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Now there is absolutely no problem in meeting multiple people, लेकिन दीपिका पादुकोण की टॉक्सिसिटी नेचर में ग्लेयरिंगली वहां दिखती है जब ये अपने मुंह से ये चीज कहती है that I was meeting multiple people, but still I was mentally committed to रणवीर सिंह. This proves the fact कि दीपिका को शुरू से ही ये बात पता थी कि रणवीर सिंह उसके प्यार में पागल है, लेकिन दीपिका उसके प्यार में पागल नहीं है, and hence she was window shopping for the probable or potential relationships she wanted to have in the first place. और अगर ये मल्टीपल डेट्स में से कोई भी एक रिलेशनशिप आगे जाके मैच्योर नहीं होता इनटू अ लव रिलेशनशिप, मैं रणवीर सिंह के पास वापस आ जाऊंगी ये बोल के, ये एक्सक्यूज देके इनफैक्ट कि मैं मेंटली तो तुम्हारे से ही कमिटेड थी। अब इसका मतलब एक है और वो काफी साफ है कि रणवीर सिंह दीपिका का सेफ्टी नेट था फ्रॉम डे वन। मेरे को एक बात बताओ दीपू, तो तेरे पापा भी कुत्ते हुए ना? My papa is not a dog, he's a guy. और 4 पैर वाला गाय नहीं, GUY वाला गाय। हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सारे लोग लॉकडाउन में Chudel, bitch, whore, slut. If I wear red lipstick. यार ये कितनी ज्यादा चूतिया बात है कि इस लड़की ने रेड लिपस्टिक लगाई और इसको किसी ने गाली बकती। बहुत सारी डायन है, चुड़ैल है और भी बहुत सारे शब्द जो इसने अपने लिए यूज करे। मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वुमेन कार्ड तो समझ गए इसने अपने लिए क्या क्या बोला है। प्लस मैं इसको बोलना चाहूंगा कि दीदी ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि तुमने रेड लिपस्टिक छोड़ो, तुम किसी भी कलर की लगाओ यार, तुम्हें कौन गाली बकेगा, क्यों गाली बकेगा? मेरे हिसाब से तुम बहुत ज्यादा गलत जगह रहती हो, तुम्हें वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। शायद तुम पाकिस्तान रहती हो इसलिए तुम्हें गाली पड़ रही है, तुम इंडिया आओ। भाई इसकी लिपस्टिक ना खाली, हम तो ये बेचारी लाल लगा के निकला तो इसको कोई गाली बक दे। अब इसने सोची थी कि यार मैं लाल लगा के निकली तो मेरे को किसी ने डायन कह दी, अब एक काम करती हूँ पिंक लगा के निकलती हूँ, क्या पता कोई कुछ ना कहे। पर लोग समझदार है, लोगों ने इसको पहचान लिया। सॉरी। तो यार दीदी आप एक काम करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने टोटका करा रखा है, आपकी लिपस्टिक की उनकी नजर उतरवाओ और लिपस्टिक की ब्रांड चेंज करो, या फिर एक काम करो तुम क्रेयॉन्स लगाओ। साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस।